कोरोना केस कम होने से दिल्ली को वीकेंड कर्फ्यू से मिली राहत, दुकानों के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी खत्म। डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। और अब खुले बाजार में बिकेगी कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशर्त मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ, जहां पर साफ तौर से आज करेंगे हम बात एयर इंडिया की। करीब 7 दशक बाद एयर इंडिया फिर एक बार टाटा ग्रुप के पास लौट आई है। एयर इंडिया के इतिहास में आज बड़ा दिन है। आज औपचारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली में एयर इंडिया को खरीदा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने खुद दिल्ली में एयर इंडिया के हेडक्वार्टर पहुंचकर हैंडओवर लिया। हैंडओवर से पहले चंद्रशेखर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एयर इंडिया का विनिवेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, जो आने वाली विनिवेश योजनाओं के सफल होने का रास्ता भी है, क्योंकि एलआईसी और बीपीसीएल का विनिवेश पाइपलाइन में है। इनके आईपीओ को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे से बात की हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने। Let me begin by just asking you why this moment is so significant and how it has given a boost to the idea that government can truly exit businesses it shouldn't be in. Air India is a very important organization, and not only the fact that it is simply an organization working in an industry, but the industry is extremely important. It's a network industry. It has connection with diaspora, Indian diaspora around the globe, and it has got soft aspects which stretch from to different continents. So growth of this organization was extremely key, not only from the point of view of its employees, but also from the Indian people at large, Indian diaspora, the other stakeholders, suppliers, as well as the other industries which are dependent on that. So its growth has been an extremely important factor in government deciding that in the private hands it will be able to achieve what it is intended to achieve. What was the most challenging juncture through this process? For the longest time, the question was who would take on Air India with its large amount of debt. The decision to hive off its debt could not have been an easy one. Then there was protest and concerns from among employees and worker unions. What would happen to the brand of the national carrier? And then you finally ended up, sealing the deal in the middle of a global pandemic that hit the aviation sector. Was that the hardest bit? Well, I think if you really see, all these factors were really the challenges that this particular transaction was made of. One, we have to understand that there is a debt which is sustainable, there is debt which is highly unsustainable. Air India's debt was not merely because of the assets that it was possessing, but because of the continued losses running into several thousands of crores over a period of time. The government had given, more than 1 lakh crore, it's 1.10 lakh crore worth of funds and guarantees over just 1 decade. Now, this kind of continued drain on the taxpayers' money was simply untenable. Let me come to the big what next question, sir, since we have successfully completed the Air India process. All eyes now on the LIC. Of course, BPCL and SCI, etc., are also on the anvil. But let me just, get your focus in on LIC. What are the kind of timelines we're looking at? And is there a concern that the third wave of COVID-19 and the current sort of souring of the mood of global investment could delay that process? LIC IPO का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से
समय पे हम चल रहा है और हमें आशा है कि हम मार्च में LIC IPO को कर पाएंगे। How crucial would the LIC IPO be from the point of view, of course it will be the big one, the behemoth, from the point of view of meeting targets being set for disinvestment as well, and again the soft power that you spoke about in the context of Air India. LIC again is one of those brands that there's a feeling of collective ownership by all Indians. आपने बिल्कुल ठीक कहा है। LIC एक हाउस होल्ड नेम है। LIC एक सबसे बड़ी वित्तीय संस्था सरकार की रही है और सरकार ने यह निर्णय किया कि इसको भागीदारी उसको LIC में उसकी भागीदारी पब्लिक में जाए। LIC का निर्णय में क्लियर है, सरकार LIC अधिनियम के अनुसार LIC सरकार की ही संस्था रहेगी। 51% हमेशा सरकार उसमें रखेगी, ये अधिनियम में ही लिखा है। और लेकिन लिस्टिंग से उसके बहुत फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो बहुत सारे जो हमारे, क्योंकि LIC इतनी बड़ी संस्था है, वित्तीय संस्था है, तो उसके शेयरों में भागीदारिता हम पब्लिक ओनरशिप की ओर जाएंगे। ओके मन बहुत कर रहा है एक आखिरी सवाल पूछने का सर, इफ़ यू अलाउ। बस अगर आप BPCL का क्या है लेटेस्ट, उस पर आप अपडेट दे सकें हमें। BPCL में हमारे जो अभी जैसे कि ड्यू डिलिजेंस की स्टेज में हम चल रहे हैं और उसमें थोड़ी सी गति लाने की ज़रूरत है और वो बिडर्स को हम लोग बता रहे हैं थ्रू आवर ट्रांजैक्शन एडवाइज़र कि वो इसको बिडिंग प्रोसेस में आगे आने के लिए तैयार हो, फाइनेंशियल बिड के प्रोसेस में, क्योंकि उसमें अभी थोड़ी सी डिले चल रही है। तो हमें आशा है कि हम, क्योंकि ये कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस है, तो बिडर्स का उसमें कोऑपरेट करना ज़रूरी है हमारे लिए। बात करते हैं बजट की। फरवरी को पेश होने जा रहे देश के बजट में नेशनल ट्रांसपोर्टर यानी भारतीय रेलवे के लिए क्या होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें जमी हैं। लेकिन ET नाउ आपको सबसे पहले बताने जा रहा है कि कैसा रहने वाला है भारतीय रेलवे का बजट, यात्रियों के लिए क्या नया होगा और माल भाड़े के नजरिए से क्या नई दिशा दी जाएगी इस बजट में। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इसको लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित देंगे। समीर के पास जाते हैं। बताएं हमें समीर के आखिर रेलवे पैसेंजर्स के लिए बजट में क्या कुछ खास आने की संभावना है। कैसा रहेगा रेलवे का भविष्य, आने वाले सालों में रेलवे आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी, और इसी को लेकर के रेलवे का जो अगला बजट है वो एक बेस सेट करेगा, वो एक भूमिका तय करेगा। यही वजह है कि जो अगला रेलवे बजट है उसको टर्न अराउंड रेलवे बजट कहा जा रहा है, क्योंकि ये रेलवे का भविष्य, खासकर अगले 8 से 10 सालों में रेलवे किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसको ये तय करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले रेलवे बजट का जो बजटरी आउटले होगा, यानी कि उसका कुल खर्च जो होगा वो लगभग 10 से 12 लाख करोड़ का होगा, और इतने पैसों के जरिए रेलवे को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की योजना इस बजट में पेश की जा सकती है। यही वजह है कि अगले रेलवे बजट का जो थीम है वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। यात्रियों के नजरिए से बात करें तो सबसे पहली बड़ी जो अनाउंसमेंट हम देख सकते हैं वो है बुलेट ट्रेन की। भारत के दूसरी बुलेट ट्रेन की घोषणा हो सकती है जो दिल्ली हावड़ा रूट पे दौड़ेगी वाया बनारस होकर के। बनारस प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, तो ये बुलेट ट्रेन की घोषणा हम आगामी बजट में देख सकते हैं। दूसरी अहम बात यह कि
सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों को भारतीय रेलवे में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाएगा। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट है, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता हावड़ा, ऐसे रूट पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन या साफ शब्दों में कहूं तो वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है, जिसकी अनाउंसमेंट हम बजट में देख सकते हैं। यात्रियों के नजरिए से भारतीय रेलवे में जो भविष्य होने जा रहा है वो है वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसकी घोषणा होगी। अब वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन सेट का जो अगला स्वरूप होगा वो है एल्यूमिनियम बेस्ड ट्रेन सेट। तो एल्यूमिनियम बेस्ड ट्रेन सेट के दरवाजे भारतीय रेलवे में खुलने जा रहे हैं और उसकी भी घोषणा होगी। अहम बात यह है कि सुरक्षा के नजरिए से जितने भी पुराने आईसीएफ कोचेस हैं या जो डब्बे हैं उनको रेलवे नेटवर्क से हटा दिया जाएगा और सिर्फ एलएचबी या ट्रेन सेट ही भारतीय रेलवे की पटरी पर दौड़ेंगे और इसकी घोषणा भी होने जा रही है। जो रेलवे स्टेशन है उनके नजरिए से आपको बता दें कि 50 जो बड़े स्टेशन हैं उनको स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वो अपनाया जा सकता है कि वो वित्त वर्ष 2022-23 में उनको प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जाएगा और वो उनकी रूपरेखा को बदलेंगे। तो ऐसे 50 स्टेशन को बतौर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए उसकी घोषणा अगले बजट में की जा सकती है। तो यात्रियों के नजरिए से ये कुछ बड़े ऐलान है जिसको बजट में हम देख या सुन सकते हैं। समीर, ये बताएं हमें कि रेलवे की आमदनी बढ़ाने, माल भाड़े और ग्रीन मोबिलिटी के लिए किस तरह से रोड मैप बनाने को लेकर कुछ चीजें सामने आ सकती हैं इस बजट में? मालगाड़ी दौड़ा करके रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई हासिल होती है। यही वजह है कि फ्रेट सेगमेंट को लेकर के अगले बजट में हम कुछ बड़े ऐलान देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को लेकर के इसमें रेलवे की क्या भूमिका रहने जा रही है, तो ये रोड मैप इस बजट में हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का लक्ष्य भी इस बजट में हम देख सकते हैं। मौजूदा जो 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट है भारतीय रेलवे का, इसको घटा करके 11% लाने का लक्ष्य वो हम इस बजट में इसका ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अगर आप रेलवे के जरिए अपना सामान भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोयले से लेकर के कार तक, तो ये सस्ता होने जा रहा है और सस्ता लगभग 3 से 4% सस्ता हो सकता है। एक अहम बात यह कि अब तक आपने ईएमयू पैसेंजर ट्रेन का नाम सुना होगा, लेकिन पहली दफा भारतीय रेलवे में ईएमयू पार्सल ट्रेन को शामिल किया जा सकता है और इसका ऐलान हो सकता है। ईएमयू पार्सल ट्रेन के जरिए रेलवे नए कस्टमर को आकर्षित करना चाहेगा, विशेषकर जो ई कॉमर्स प्लेयर हैं। इसके अलावा जो छोटे कंटेनर हैं जिनको अभी रेलवे से हटा दिया गया था, तो उसकी वापसी हम रेलवे नेटवर्क में देख सकते हैं। 2.5 एक्सेल लोड वाले जो छोटे कंटेनर हैं इनको रेलवे में दोबारा शामिल किया जाएगा ताकि जो छोटे सामान हैं उनको भी लोग रेलवे के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसके अलावा टाइम टेबल ट्रेन तो हमने चलती हुई देखी है जो यात्रियों वाली ट्रेन होती है, लेकिन पहली दफा मालगाड़ियां टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी और इसका ऐलान भी हम बजट में देख सकते हैं। और इसके जरिए रेलवे ये दिखाना चाहेगा कि उसमें दम है कि वो आपका सामान पंक्चुअलिटी के आधार पे, यानी कि समयबद्धता के आधार पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। तो टाइम टेबल बेस्ड ट्रेन सेट भी हम इसका ऐलान आने वाले बजट में देख सकते हैं। कुल मिलाकर के फ्रेट सेगमेंट में कई बड़े ऐलान हैं जिसके जरिए रेलवे कोशिश करेगी कि नए कस्टमर को शामिल करे, आकर्षित करे और अपनी ये जो कमाई है इसको भी कई गुना बढ़ा सके। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियां हमें देने के लिए समीर। तो यहाँ पे देखना होगा रेल बजट में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर यूएस फेड रिजर्व से मिल रहे संकेतों से ग्लोबल बाजारों में आई गिरावट का असर भारतीय बाजार पर हमने देखा। बाजार की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन शुरुआती झटके के बाद नीचे से रिकवरी बाजार में आती हुई हमने देखी। बैंकिंग शेयरों की बात करें तो इन्होंने बाजार को सपोर्ट दिया है, लेकिन ये बाजार को हरे निशान में ले जाने में नाकाम रहे हैं। बाजार में दिन भर का कारोबार कैसा रहा, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही हैं। आज ग्लोबल बाजारों से जिस तरह से कमजोरी के संकेत आ रहे थे, भारतीय बाजारों की शुरुआत भी कमजोरी के साथ ही हुई है, लेकिन भारी गिरावट के बाद हमने देखा कि बाजार में निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। और आज जो वीकली एक्सपायरी हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो भी अगर हम देखेंगे तो 17,100 के ऊपर निफ्टी एक्सपायरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग करीब 37,900 के ऊपर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी देखने को मिली है। तो शानदार रिकवरी देखी गई है, 900 अंकों की करीब रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी में आज देखने को मिली। और सबसे ज्यादा मजबूती थी आज बैंकिंग सेक्टर में, जहां पर कि लगातार हम देख रहे हैं कि
अच्छे नतीजे और कमेंट्री आ रहे हैं बैंकों की तरफ से, और उसी के चलते बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। स्पेशली सरकारी बैंकों में आज काफी अच्छा जोश था। अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर आखिरी कुछ घंटों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी वहां पर देखने को मिली और 1% की रिकवरी करीब देखी गई। लेकिन आज कमजोरी दिन भर थी आईटी और फार्मा शेयरों में, यहाँ पर आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो एक्सिस बैंक आज ऊपर था, उसके बाद एसबीआई, मारुति सुजुकी में भी आज अच्छी तेजी थी और सिप्ला में भी अनुमान से अच्छे नतीजे कंपनी ने दर्ज किए, जिसके चलते आज अच्छी मजबूती यहां पर भी देखने को मिली है। गिरने वाले शेयरों में आईटी शेयर आज कमजोर थे, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज कल नतीजों के पहले यहां पर भी कमजोरी थी और टीसीएस। तो जो टॉप लूजर्स थे उसमें 3 टॉप स्टॉक्स आज आईटी सेक्टर से ही देखने को मिले हैं। सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी थी, कैनरा बैंक के नतीजे आए, उसके बाद देखिए यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली है। नतीजों का असर कुछ और भी स्टॉक्स पर था। दिन के दौरान अरविंद ने अपने नतीजे घोषित किए और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। कैनरा बैंक की भी हमने बात की, लेकिन कोलगेट के नतीजे कुछ कमजोर थे और यहाँ पर करीब 2% 1 से 2% की गिरावट दर्ज हुई और टोरेंट फार्मा में भी दिन भर कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिला। जो नतीजे कंपनी ने घोषित किए कमजोर नंबर्स थे, उसके चलते एक भारी गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। मिड कैप में स्पेस में ही कुछ और स्टॉक्स की बात करें जहां पर की तेजी थी, उसमें जीएमडीसी, एचओईसी, अरविंद और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, यहां पर अच्छी तेजी आज देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट स्विस के एमडी नीलकंठ मिश्रा के मुताबिक ग्लोबल हालात का बाजार पर असर पड़ा है। बाजार को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, ईटी नाउ स्वदेश से उनकी खास बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। आउटलुक नोट छापा था दिसंबर में, तो हमने उसी समय कहा था कि वी प्रेफर लोकल सिक्लिकल्स ओवर ग्लोबल सिक्लिकल्स। तो हमारा ये कहना था कि भाई जो हमारे बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, सीमेंट हैं, तो इनके डिमांड पे पॉजिटिव सरप्राइज या लेस नेगेटिव सरप्राइज पे हमें ज्यादा कंफर्ट है और ग्लोबल सिक्लिकल्स जो हैं वो थोड़े कमजोर होंगे। तो वो ट्रेड तो मेरे हिसाब से अभी भी चलेगा, इनफैक्ट वो और कंफर्म ही होता जा रहा है। ग्लोबल वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल से काफी महीने चलेगी। अभी मुश्किल ये है कि इंक्रीमेंटल डिमांड मोमेंटम, तो आप देखें यूएस का जो रिटेल सेल्स का डेटा आता है, तो वो पहले अगर ये ट्रेंड लाइन है तो वो काफी ऊंचा चला गया था, वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। हमने एक ग्लोबल प्रॉक्सी बनाई है रिटेल सेल्स की। हम चीन का, अमेरिका का, यूरोप का, यूके का, इन सब के रिटेल सेल्स को, जापान का, इन सबको कंबाइन करके ग्लोबल प्रॉक्सी बनाई है। तो वो प्रॉक्सी जो है वो हम सोच रहे थे कि मार्च तक ट्रेंड लाइन पे वापस आएगी, वो लगता है दिसंबर में ही आ गई होगी, क्योंकि चीन में भी डिमांड काफी कमजोर है, अमेरिका में तो डिमांड कमजोर है ही और हो रही है, अभी भी मतलब ट्रेंड लाइन पे ही है, बट सीक्वेंशियल मोमेंटम काफी नेगेटिव है। तो ये चिंता जो मार्केट को सताने लगेगी कि अगर डिमांड कमजोर हो रहा है और जो पॉलिसी मेकर की प्रायोरिटी है वो इन्फ्लेशन फाइटिंग है, तो इससे ये बहुत ही मुश्किल वाले हालात हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जो फेड का पुट होता था कि अगर S&P 500 या जो है वो एक लेवल पे आएगा, उसके अभी वो लेवल ही नीचे आ गया है कि अगर S&P 500 बहुत गिरता है तो फेड आके बोलने लगता है नहीं घबराइए, नहीं हम रेट। तो ये जो पिछले 10-12 साल के ट्रेडिंग पैटर्न था, या इनफैक्ट उससे भी पहले था, कि जब भी लगे कि कुछ कमजोरी आ रही है तो एक फिस्कल स्टिमुलस या मॉनेटरी स्टिमुलस आ जाएगा, तो ये अजम्पशन अब मार्केट नहीं ले सकता। सो अभी मुश्किल ये है कि मार्केट के लिए क्योंकि अभी जो पॉलिसी मेकर्स हैं स्पेशली यूएस में, वो अभी इन्फ्लेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर ग्रोथ वीकेंड होता है तो वो तुरंत स्टिमुलस देने नहीं आ जाएंगे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये मार्केट ग्लोबली काफी वॉलेटाइल रहेगा। मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी के मुताबिक महंगाई की वजह से ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। उनका ये मानना है कि एनर्जी बैंक और रियल्टी शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। ये इस साल का सेंट्रल मुद्दा रहेगा। यूएस बॉन्ड यील्ड्स हमें एक बहुत अच्छे एक इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली हैं वो भारत भी हो या जापान हो या जर्मनी हो, वो सब यूएस की ओर देखते हैं। जस्ट एज हम यूएस इक्विटी मार्केट को देखते हैं हर सुबह, उसी तरह बॉन्ड यील्ड्स को भी बॉन्ड प्लेयर्स देखते हैं।
तो इस साल जैसे हम साल शुरू कर रहे हैं, एक डर है कि भाई इन्फ्लेशन जो हमें लगता था कि फेड ने भी कहा था ट्रांजिशनरी है, ये ज्यादा स्ट्रक्चरल होगा। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे कि अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशन है। ये एक नरेटिव है, ये फेड का भी नरेटिव है। और बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो हम देखते हैं, वो उन्होंने अभी जो रिसेंट हाइज है उन्होंने भी निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि ये अर्ली इन द ईयर ये इस चीज का काफी हवा रहेगा। बॉन्ड यील्ड्स एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहेंगे, और इसके कारण क्या होगा कि जो कमोडिटीज की रैली है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। बट इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो बहुत बड़ा थीम है वो है ग्रोथ और वैल्यू का। क्या होता है कि देखिए 2007 से अब ये समझो 13-14 साल हो गए हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स ने वैल्यू स्टॉक्स को आउट परफॉर्म रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स या बॉन्ड यील्ड्स जो है जो वीक है। जब लगेगा मार्केट को कि बॉन्ड यील्ड्स थोड़े ऊपर आ रहे हैं, ये वापस जो है ट्रेड वैल्यू की ओर भागता है। और ये हम ऑलरेडी इस 15-20 दिन में देख रहे हैं कि ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी है या जो भी हाई वैल्यू या हाई ग्रोथ के जो हाई ग्रोथ वाले जो एरियाज हैं वहां पे थोड़ा करेक्टिव हो रहा है। और जहां पे वैल्यू है जो बहुत बीटन डाउन स्पेसेस थे, जो 10 साल तक कुछ नहीं किया, जैसे एनर्जी है या रियल एस्टेट है या बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं, आप देखेंगे कि उनमें थोड़ा एक उछाल आ रहा है। सो आई थिंक ये साल जैसे मैंने कहा कि वो कभी खुशी कभी गम, जब आपके लगेगा कि भाई जी हमें वैल्यू ट्रेड ही खेलना है, आप देखेंगे कि ग्रोथ चल पड़ेगा। और जब आपको लगता है कि भाई जी हमको ग्रोथ ही खेलना है, वैल्यू चल पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से कि ये साल एक ऑल्टरनेटिंग ईयर रहेगा। और एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्टाइल होते हैं ट्रेडिंग के, एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग और एक होता है जो बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और पिछला साल जो है एक ट्रेंड का था, एक वन वे ट्रेंड था, आपको इक्विटी में कुछ भी ले लिया पैसा बन गया। बट ये साल ऐसा नहीं रहेगा। इस साल जब हमें बहुत बुलिशनेस होगी मार्केट निराश करेगा, जब हमें बहुत निराशा होगी मार्केट ऊपर की ओर सरप्राइज करेगा। सो मैंने कहा जैसे पहले ये एक साल रहेगा कभी खुशी कभी गम। एडलवाइस सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च आदित्य नारायण टेक्नोलॉजी शेयरों को लेकर काफी बुलिश हैं। उनके मुताबिक आईटी सेक्टर में डिमांड की कमी आने के आसार नहीं है और उनका आउटलुक अच्छा है। Two areas that we think, or two sectors where we think there is a very decent upside from a business trajectory perspective, right? The first is the technology space. These stocks have now got pretty badly hammered over the last couple of days. So I think there is a much greater value that you're getting at this point in time in that space. So there, as I said, I think at many levels, the growth paradigm is set for a couple of years. We don't believe their demand or their growth is going to be impacted by a switch in interest rates globally, right? So here you have a situation where the outlook is good. The pricing is getting attractive because an overreaction to rate changes, which will not impact the business. So I think that's a space I think that is that has become much more attractive at this point, given the kind of erosion that you've seen in values there. The other space where again we see very decent absolute returns is the banking space, simply because you probably crossed the hump from an asset quality perspective. You're beginning to see loan growth come through. And valuations in a traditional context are relatively moderate, right? So that's another place where we tend to believe that there is very decent return that you can get, and there would be stock opportunities that this event is tending to throw up. चलिए इसी के साथ स्वदेश में आज के लिए इतना।